اسے ہم کنیز کیوں کہیں؟ چلو اگر بات اتنی اچھی سنی ہے، اگر اجازت ہو تو یہیں سے ایک بات سنا دوں سیدہ کی عزت کی، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں مصرع بڑا پیارا آ گیا، پتہ نہیں کیوں زبان پہ آیا گیا۔ مولا قسم مولا امر کرتے ہیں، مولا فرماتے تم ہمارا ذکر کیا کرو، ہم تمہارا لہجہ بن جائیں گے۔ پتہ نہیں کس طرح حلال زادوں نے مجھے شاباش دی ہے، میرا دل کر پڑا ہے۔ 39 یار یہ مصرع بڑا پیارا ہے، اگر اس مصرے کی داد ملے گی تو اگلی بات کریں گے۔ 39ویں دن کا سورج شرمندگی سے غروب ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلو لے جاتا ہوں، چلو میں لے جاتا ہوں، چلو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، شیعہ کے لیے جملہ ہے۔ 39ویں دن کا سورج کچھ بندوں کی نالائقگی کی وجہ سے شرمندگی سے غروب ہو گیا۔ اگلا مصرع پڑھوں گا، جو ہیبری شیعہ ہے میرے ساتھ بولے گا۔ 39ویں دن کا سورج کچھ بندوں کی نالائقگی کی وجہ سے شرمندگی سے غروب ہو گیا۔ 40ویں دن کا سورج بہادری کی انگڑائی لے کے طلوع ہو رہا ہے۔ میں سیدہ فضا پڑھ رہا ہوں، اگر جناب توجہ کریں۔ 40ویں دن کا سورج بہادری کی انگڑائی لے کے طلوع ہو رہا تھا۔ جب 40ویں دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اب 39ویں دن کی شب، مشکل میں کیا ہے؟ دین، اسلام، قرآن، اللہ، محمد کی نبوت۔ محمد مصطفیٰ نے کام کیا؟ مصلح اٹھایا، مصلح اٹھا کے محمد نے بتایا جب مشکل ہو تو مصلح پر آ جایا کرو۔ لیکن جو عمل محمد نے کیا وہ بھی کرو نا۔ محمد مصطفیٰ مصلح پہ آئے، سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے گفتگو کی، فرمایا میرے اللہ، میرے خالق، میرے رازق، اے رحمان، اے جل جلالہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس وقت دین مشکل میں ہے، اس وقت دین مشکل میں ہے۔ کل ہے 40واں دن، کل ہے نتیجے کا دن۔ اگر کل بھی کوئی مرد نہ آیا، لو جی اگلے مصرے پہ کوئی بندہ میرا دشمن ہو جائے نا جی صدقے، میں گھر میں شانی بھائی سکون کی نیند اس لیے سوتا ہوں، میری دشمنی کی وجہ علی کی ولایت ہے۔ کیا بات، کیا کہہ میری کوئی اپنی ذاتی دشمنی کسی بندے کے ساتھ نہیں، میں علی پڑھتا ہوں، بندوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ تے علی پڑھنا ہے، نہ کسی کو ڈر کے پڑھنا ہے، میدان چ پڑھنا ہے، چونک چ پڑھنا ہے، پڑھنا بھی ہے، منوانا بھی ہے۔ اب جملہ بڑا حسین آ گیا ہے۔ 39ویں دن کا سورج شرمندگی سے غروب، محمد مصطفیٰ کا دین خطرے میں، لا الہ بھی خطرے میں، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں، لا الہ بھی خطرے میں، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں۔ محمد مصطفیٰ نے مصلح بچھایا، مصلح بچھا کے نبیوں کا سلطان فرما رہا ہے میرے اللہ اگر صبح کوئی مرد نہ آیا، تیرا لا الہ بھی خطرے میں ہے، میرا محمد رسول اللہ بھی خطرے میں ہے، تیرا لا الہ بھی خطرے میں ہے، میرا محمد رسول اللہ بھی خطرے میں ہے۔ ابھی اتنی بات کرنی تھی کہ جبرائیل نازل ہوا اور مصلح پہ آ کے مصطفیٰ کو فرمایا اے میرے آقا، اللہ کہہ رہا ہے اگر لا الہ بھی خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں ہے، پھر پتہ کرو علی ولی اللہ کہاں ہے۔ کیا سنا بندے نے بھائی؟ اگر جناب کو محسوس ہو رہا ہو تو میں سیدہ فضا تلاوت کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ خیبر سے حسین کی ماں پڑھنے جا رہا ہوں، حسین کی حقیقی ماں، تیری خیر ہوئے۔ کیا بات ہے سیدہ۔ کیا بات۔ جملہ سن، میرے کئی ہر مجلس میں کہتا ہوں جو آل محمد میں گھر میں کسی کو بھی مذکر مونس کہتا ہے ان سے میری گفتگو نہیں، یہ نور ہے، یہ نور الہیہ ہے۔ میرے مالک اللہ کہہ رہا ہے اگر لا الہ بھی خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں ہے، پھر پتہ کرو نا علی ولی اللہ کہاں ہے۔ علی محمد کہاں تھے؟ مصلح پر۔ محمد تھے مشکل میں۔ کیا سنا آپ لوگوں نے؟ محمد تھے مشکل میں، مشکل میں اللہ کی طرف سے آیا پیغام کہ اب علی کو یاد کرو۔ کہاں؟ مصلح پہ۔ کیا بات، کیا بات۔ کہ مسئلے کا حال نہیں گزر گیا بھائی، کہاں؟ مصلح پہ۔ محمد مصطفیٰ نے سارے سجدے میں رکھ کے کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، جاؤ محمد پہ فتویٰ لگاؤ، تم سجدے میں علی کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ جملہ میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہ پہنچا۔ یا علی ادرکنی، بے شک علی والے نہ پہنچے لیکن علی کا منکر پہنچ گیا ہوگا، میں بات کہاں سے کر رہا ہوں۔ اب جملہ سن کتنا حسین کہنے جا رہا ہوں، یا علی ادرکنی، یا علی میری مدد کو آ۔ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، خط لکھا کسی کو نہیں تھا، مصلح پہ یاد علی کو محمد نے کیا۔ محمد تھے خیبر کے میدان میں، علی تھے مدینے میں۔ ادھر خیبر کے میدان میں مصلح پہ محمد نے علی کو یاد کیا، وہاں مدینے مصلح پہ علی نے سن لیا۔
क्या बात है, इमाम फिजा ने सुन लिया। वहां अली ने सुन लिया। वहां तवज्जो करना, जब अली ने सुना, अली मुसल्ले से उठे, पास कंबर था, कहा कंबर जल्दी जाओ, घर चले जाओ, घर से मेरी जुल्फकार लेके आओ। कंबर घर जाओ, घर जाके मेरी जुल्फकार लेके आओ। फरमाया मेरे आका मेरे मौला कहीं आप गए नहीं, खत किसी ने आपको लिखा कोई नहीं, कोई आपके पास आया कोई नहीं, ये मुसल्ले से उठ के जुल्फकार की जरूरत कहाँ पड़ गई, किधर जाने के इरादे हैं। फरमाया कंबर जल्दी जाओ, ला इलाहा भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है, ला इलाहा भी। मैं सैयदा फिजा तलावत कर रहा हूँ, अभी तक बंदे पहुंचे क्यों नहीं है, ला इलाहा भी खतरे में है, मोहम्मद रसूल। मुझे मौला की कसम ये जुमले मैंने 3 से 4 दिन पहले जंग में पढ़े हैं। हजारों का मजमा जमीन पे नहीं बैठा, सारा तलियों पे खड़ा हो गया। ये मेरा घर है, बुजुर्ग बैठे हैं, अलामा साहब बैठे, सिर्फ दुआ कर दीजिएगा, ताईद मिल जाएगी, इतना ही काफी हो जाएगा। मुझे मौला कसम कंबर जल्दी से चलता 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 अली के दरवाजे पे आया। अभी कंबर अली का पैगाम लेके अली की हुज्जत तमाम करते हुए दरवाजे पे आया था। कंबर ने इरादा किया दरवाजे पे दक्कल बाब दूं। दरवाजे पे दक्कल बाब देने के लिए कंबर ने हाथ उठाया, अभी हाथ दरवाजे पे नहीं आया, दरवाजा खुद ब खुद खुल दरवाजा खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया। दरवाजा खुलना था, दरवाजे के पीछे हुसैन की माँ सैयदा फिजा हाथ में जुल्फकार लेके खड़ी थी, हाथ में जुल्फकार लेके खड़ी थी। कंबर ने कहा बीबी मुझसे पहले यहाँ आया कोई नहीं, तुझे कैसे पता मैं जुल्फकार लेने आई। बीबी ने कंबर जल्दी जाओ, ला इलाहा भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है, ला इलाहा भी खतरे में है। यहाँ एक मिसरा है, उसी मिसरे की दाद दो मुझे मौला की कसम। जैसे ही कंबर ने कहा ठीक है बीबी तुझे पता तो चल गया, लेकिन बीबी ये बता ये सारी बातें तुझे कैसे पता चलती है। बोला कंबर जाओ, नौकर और होते हैं माए। वाह 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 वाह, कंबर नाराए हैदरी, बुलंदतर सलावत। कंबर जाओ, बाहिर के नौकर और होते हैं, क्या बात, क्या कहने, माए और होती हैं। और हुसैन ने इस मखदूमा को माँ सिर्फ कहा है, और जो थी क्या कहने, क्या उसे मोहम्मद ने भी कहा उम्मो अबीहा, अबीहा, यानी के मेरी भी माँ। बात सुनने में आती है, अकल में नहीं आती कि हैं बाप की माँ वो भी बेटी। ये कोई शीयों की आलम नहीं लिखी, सुन्नियों के बड़े बड़े आलमीन ने ये बात लिखी है कि मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया उम्मो अबीहा, ए फातिमा तू मेरी भी माँ है। ये क्या बात भाई, मोहम्मद मुस्तफा रहमत लिल आलमीन है और फातिमा मोहम्मद की भी माँ जबकि बेटी है। ये क्या, अगर मिसरे थे गल खुले थे मैं ना बोली, नहीं तो ना बोली। नबियों के सुल्तान से बात चलते पूछते या रसूलल्लाह बात अकल में नहीं आ रही। अजब नहीं कि रोज़ा मुस्तफ़ा से आवाज आएगी ये मेरा ज़ैन है मैं इसका ज़ैन हो जाऊं। शेर तुसी सुनते रहते हो, कमर भाई को शेर तुसी सुनते रहते हो। अगला मिसरा बड़ा प्यारा पढ़ना है, मैंने मौला की कसम ये सारे बैठे हैं, मेरी अपनी संगत है, हर एक बंदे के चेहरे से वाकिफ हूँ। मैंने 4 मिसरे लिखे थे आज से 2 माह पहले। इतनी इज्जत मिली है, मौला के बड़े ही प्यारे मदा खां हैं आसफ कमाल साहब, उन्होंने ये मेरे शेर पढ़े हैं, मेरा नाम लेके पढ़े हैं। मौला ने अता मुझे किए थे उम्मे अबीहा की हकीकत क्या है मैं कह रहा हूँ ये मेरा ज़ैन है। अगले मिसरे थे शानी भाई वासे भाई, अगर तो बात सलमान भाई खुल जाए तो फिर दाद देना वरना दाद ना देना। बात ही तो अकीदे की है, अकीदा अच्छा हुआ तो बात यहाँ आएगी, अकीदा अच्छा हो तो बात यहाँ से यहाँ आती है, वरना यहाँ से गली निकाल लेते हैं। ये मेरा ज़ैन है, क्यों कहा उम्मो अबीहा, ये मेरा ज़ैन है मैं इसका ज़ैन हो जाऊं। नबियों का सुल्तान फरमा रहा है ये मेरा ज़ैन है, कौन सैयदा, क्यों कहा उम्मो अबीहा, ये मेरा ज़ैन है मैं इसका ज़ैन हो जाऊं। हिजाबे खाली के अकबर का चैन हो जाऊं। और कहा मोहम्मद ने माँ इसलिए बतूल को नबी का दिल था मैं भी हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
کیا کہنے, واہ بھائی واہ, واہ واہ واہ. نام حسین کا ہے تو بات حسین کی تو کرنی چاہیے. بھائی گل جیڑی ہوندی نا پہنچے وہی بڑی ہوندی ہے. کربلا کی وادی میں ایک لفظ ہے ہنی بھائی, اگر اس کی قیمت دو. کربلا کی وادی میں قادر صرف حسین ہے, کیونکہ حسین اتنا بڑا سخی ہے کہ جو بندہ ساری زندگی رضی اللہ بننے کے قابل نہ ہو, میرا حسین ایک رات میں اسے لہے سلام کر دے گا. انی و نامن الحسین بلندتر صلوات صلی علی محمد. حسین منی وانا من الحسین. آپ نے یہ بات کی ہے تو میرا دل ہے میں حسین منی وانا من الحسین کی تفسیر نہ کر دوں. یہ نبیوں کو سلطان نے محمد مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حسین کو فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین, حسین منی. پھر بولو حسین منی وانا من الحسین. اچھا مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا, کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. اس کا آتا ہے کسی کو؟ حسین مجھ سے, میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے, حسین سے ہوں. نبی حسین سے, نبی حسین سے. اگلے مصرے تھے گل کھلے تھے بولی نبی حسین سے. اب نبیوں کو سلطان کا یقیناً پھر نبی حسین سے ہوں گے. حسین محمد سے ہے, سب کو پتہ ہے. محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, اس کی بیٹی کا بیٹا ہے حسین. لیکن حسین محمد سے کیسے, یہ بات کھل نہیں رہی. یعنی بھائی جیسے گل چ زور ہوئے نا تو زور لانا ہی بیوقوف کی نشانی ہوتی ہے. ایک گل چ زور ہویا تو بولیو نہیں تو نہ بولی. ہاں کیا بات ہے, کیا بات. آپ سلامت رہے. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. اب حسین محمد سے ہے, یہ بات تو ہر بندے کی عقل میں آ رہی ہے. لیکن حسین سے محمد کیسے, یہ راز کھلے گا. ایک مہینہ رک جاؤ, 11 شعبان کو محمد کی حسین کی گود میں محمد آئے گا. پھر پتا چلے گا کہ محمد حسین سے کیسے ہے. محمد حسین سے بس تمام کرنا ہے, مصطفیٰ کی طرف آنا ہے. بس ایک مصرع یہی سن لو کہ بادشاہ اکبر کا سن کے یہیں پہ سلام کرتے, جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ وقت کی تمام ہو گیا. علی اکبر کب نزول ہوا؟ 11 بولو نا یار, 11 شعبان. دعا دیجیے گا, اگلے مصرع بڑا پیارا ہے. 11 شعبان کو نزول. یہاں ایک مصرع پڑھ کے جناب کا میں نے یہیں پہ سلام کرنا ہے. ایک نظم کا ٹکڑا ہے, بس جلدی جلدی سلام کرنا ہے. 10-12 منٹ میں نوکری تمام کرنی ہے, بلکہ کوشش کریں گے کہ 9 منٹ میں نوکری تمام ہو جائے. آپ توجہ رکھیے گا, بس توجہ میں سلام کرنا ہے. علی اکبر 11 شعبان مصرع ہے, توجہ. اللہ کے فرشتے ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا, تسبیح, سجدہ, رکوع, حمد و ثنا. ہاں اللہ کی حمد و ثنا. اب میں بیٹھک میں بیٹھا چائے پی رہا ہوں, مجھے سلمان کے علامہ صاحب جلدی جلدی آئے, ممبر پہ آئے, خطاب کریں. یعنی کہ میرا خطاب کرنا میری چائے سے افضل ہے. فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ حمد و ثنا. 11 شعبان جب علی اکبر نازل ہوا بغیر وسیلہ جبرائیل. واہ 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 واہ, کیا سنا؟ بغیر وسیلہ جبرائیل علی اکبر نازل ہوا. علی اکبر, علی اکبر. اگر کہو تو یہاں مصرع پڑھ دوں, مجھے اس مصرے کے بعد یقیناً بندے گالی بھی کہیں گے, نصیری بھی کہیں گے, کافر بھی کہیں گے, مشرک بھی کہیں گے. میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے. آپ کو میرے 9ویں مولا کا فرمان نہ ہو, مجھے چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دینا اگر میں دکھا نہ سکوں. اب پڑھے یہاں گوہر عباس تو بات اور ہے, اگر پڑھے ہی بطول کا بیٹا تیرا میرا 9واں امام. تیرے اور میرے 9ویں امام سے پوچھا گیا مولا من اکبر, یہ اکبر کیا ہے؟ فرمایا دکھے تو علی اکبر, نہ دکھے تو اللہ اکبر. مولا کا فرمان ہے, نہ ہو میں تیرا مجرم, دکھے تو علی اکبر, نہ دکھے اللہ اکبر. اللہ نے اکبر نازل کیا اور اللہ نے فرشتوں پہ وحی نازل کی. جلدی کرو, تسبیحاں چھوڑو اور دیکھو میرا محمد دوبارہ دنیا میں کیسے جاتا ہے. حسین منی وانا من الحسین. آپ کی بات سے بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھو, اور اللہ نے پہلے کیا کہا ہے؟ تسبیحاں چھوڑو. ذرے پہ نہیں پہنچے. تسبیحاں یعنی کہ اللہ کی تسبیح سے افضل ہے اکبر کو دیکھنا. اکبر نازل ہو رہے ہیں. جب اکبر کو آتے ہوئے دیکھا
मैं भाई चौंक में बात कर रहा हूँ, घड़े में मुंह दे के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एक जुमले की मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जानने देना, मैं आपकी किताबों से साबित करके ना जाऊं। क्या बात। अकबर नाज़िल हुए, अकबर पे नजर पड़ गई अबू तालिब की। हाय हाय जुमला आ गया है भाई, जुमला सुनना है। अकबर पे नजर पड़ गई, मैं अकबर पे रहना है, अकबर ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अकबर है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को मोहम्मद की सूरत से प्यार है, मोहम्मद की शक्ल से प्यार है, मोहम्मद के सरापा से प्यार है। ये तो अच्छा हुआ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि अकबर मोहम्मद के बाद आए। अगर अकबर पहले आते तो मोहम्मद अकबर की शबी होते। अकबर नाज़िल, अकबर आए, अबू तालिब ने देखा और फरमाया, ए अकबर, आज के बाद मेरी सारी सखावत का मालिक तू है। आगे हैं, अगर नहीं कहोगे तो सलाम कर दूं। है तवज्जो? क्या बात। चेहरे क्यों उतरे हैं? तवज्जो तो करना। मैं मिंबर पे बैठा हूं, बात कर रहा हूं। अकबर नाजिल हुए, अबू तालिब ने यूं करके अकबर को देखा और फरमाया, आज के बाद मेरी सखावत का मालिक कौन? अकबर। अबू तालिब ने अपनी सखावत अली अकबर को सैयदा खदीजा ने देखा और फरमाया, ऐ अकबर, आज के बाद मेरी सारी दौलत का मालिक तू। अब अकबर को दिया जा रहा है माशाल्लाह, सदका नहीं, इनाम दिया जा रहा है अकबर की आमद का। ये ले अकबर, ये ले अकबर। अब जब अकबर दुनिया में आए ना, अकबर को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आए। आदम हवा के साथ आई, हाँ हाँ, आदम हवा के साथ आई, इब्राहिम सहरा के साथ आए, ये सारे आए, लेकिन यूसुफ जुलेखा के साथ आया। और जब जुलेखा यूसुफ के साथ आई ना, साथ आती थी यूसुफ को देखती थी, साथ आती थी यूसुफ को देखती थी। जब सामने अकबर आ गया, तब जुलेखा ने क्या काम किया? यूसुफ को देखा, तो जो इशारा है, इशारे में दाद है, यूसुफ को देखा, फिर अकबर को देखा। अब जब जुलेखा ने अकबर को देखा, फिर यूसुफ को देखने का दिल ही नहीं किया। क्या सुना आप लोगों ने? फिर यूसुफ को देखने का दिल ही नहीं किया। यूसुफ ने कहा, जुलेखा तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? जुलेखा फरमाती, यूसुफ मैं तो पागल हो चुकी थी ये सोच के कि तुम पे हुस्न की इंतहा है, तू तो अकबर के पास भी नहीं आ सकता। ये यूसुफ हुस्न की इंतहा है और अकबर यूसुफ को हुस्न देने वाला। सैयदा खदीजा ने देखा, बस आखिरी मिसरे, सैयदा खदीजा ने देखा और फरमाया, मेरी आज के बाद दौलत का मालिक अली अकबर। फिर अली ने देखा और फरमाया, अकबर आज के बाद मेरी वलायत का मालिक तू। वाह वाह, नहीं आता अकबर सुनना? क्या बात है, क्या बात। कर देता हूं। वाह वाह वाह। मैं चौंक में खड़ा बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा हक पे होता है तो बंदों के सामने बात करता है। अकबर मेरी वलायत का मालिक तू। सैयदा ने देखा, फरमाया, अकबर मेरी तहारत का मालिक तू। अब क्या क्या मिल चुका अकबर को? खदीजा की दौलत, अबू तालिब की सखावत, अली की वलायत, सैयदा की तहारत। हसन ने देखा, फरमाया, आज के बाद मेरे दस्तरखान का मालिक अली अकबर तू। एक मिसरा यहाँ आने वाला है और उस मिसरे के बाद नज़म शुरू करके मैंने सलाम करना है। आज के बाद मेरी दस्तरखान का मालिक तू। अब सारों ने अकबर को देखा, किसी ने सखावत दी, किसी ने दौलत दी, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया। हसन ने दस्तरखान दिया, हुसैन ने सब्र दिया, सजाद ने अपनी इबादतें दे दी, बाकर ने अपना इल्म दे दिया, बाकर ने अपना इल्म दे दिया, जाफर ने अपनी सदाकत दे दी, काजम ने अपनी अतात दे दी, रजा ने अपनी रजा दे दी, लकीर ने अपनी तकावत दे दी, नकीर ने अपनी नकाबत देखी, काइम ने अपनी हैबत दे दी, अस्करी काइम ने अपनी गैबत दे दी। मुझे मौला की कसम, जब अली अकबर को ये सब चीजों से नवाज दिया गया, उस वक्त अली अकबर को अपने हाथों पे उठाया मलिका शाम ने, अपने हाथों से अकबर को उठा के अब्बास की गोद में रख के कहा, अब्बास आज के बाद अकबर तुम्हारा शागिर्द है। आज के बाद अकबर तुम्हारा, बस ये सलाम, बस खत्म करें, आज के बाद अकबर तुम्हारा शागिर्द है। तो सब कुछ अब्बास की शागिर्दी में, ये है अब्बास। मुसलमान, बस जिसके लिए हुक्म था उस पे आ गया, बस सलाम करें। मुसलमान है दिल के बाद, जहां से शुरू हुई थी वही खत्म करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा याद है कि नहीं? मुसलमान
तू जिसके सदके हुआ। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। मेयारे मुस्तफा देखिएगा ना, मुसलमान तू जिसके सदके हुआ, मुहम्मद की नालैन है। वाह जी वाह। बोलो भाई, थोड़ा थोड़ा बोलो, बस मैं सलाम करने लगा हूँ। मुसलमान तू जिसके सदके हुआ, मुहम्मद की नालैन बलाए अरश पर जिसे खुद खुदा। हाय हाय, वाह जी वाह। यार शिया सुन्नी का अकीदा है ना, मेरे आका नलैन समेत अर्श पे गए हैं। बस सलाम करें, मुसलमान तू जिसके सदके हुआ। ਜਿਹੜੇ ਸੁन्नी बैठे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। मुसलमान तू जिसके सदके हुआ, मोहम्मद की शानी भाई नालैन है, बलाए अरश पर जिसे खुद खुदा, मोहम्मद की नालैन है। अगला मिसरा सुनिएगा सरकार की नालैन का, ये पर्वत को कुन कह के बुनती रही है। वाह 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 वाह। मेरी आखिरी है, पर्वत को यकीनन कुन कह के। दर्जात बुलंद है। क्या बात हैदर रिजवी साहब के वो फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह किसी जाकर दा एंड माड़ा ना होवे ते गल एंड वाली है। तुसी तवज्जो करनी है, तुम्हारी दुआवां दे आसे तुले फिरदे हैं। आप मोमिन दवा करते हो तो आप सब इज्जत देते हो, जाती हमारी औकात तो कोई नहीं है ना। हुसैन के मिंबर पे होते, किसी की नौकरी कर रहे होते। अब किया क्या है, हुसैन ने हमें अपने जाती घर का मुलाजम रख के हमें जमाने की मजदूरियों से बचा के बताया है, जो हमारे घर का नौकर हो वो किसी और से नहीं मांगा करते। मुसलमान तू जिसके सदके हुआ, मोहम्मद की नालैन है, बलाए अरश पर जिसे खुद खुदा, मोहम्मद की नालैन है। ये पर्वत को कुन कह के, नलैन कुन कह के, ये पर्वत को कुन कह के, कौन नलैन? अर्श की बात हो रही है। जब अर्श पे सरकार के पांव समेत नलैन ऊपर चले गई, जहां जिब्राइल रुक गया उससे ऊपर मेरे आका की नलैन चले गई थी। ये पर्वत को कुन कह के बुनती रही है, ये बातें खुदा की भी सुनती रही है। वाह वाह वाह। ये बातें ये पिछले मोहल्ला की, वाह वाह वाह। समझ नहीं आ रही है। बोलो ना, नबियों का फरमान है, जो अली के जिक्र में बोलते हैं वो हलाल ज़ादे होते हैं। ये पर्वत को कुन कह के बुनती रही है, ये बातें खुदा की भी सुनती रही है। हुई जिसकी मेराज से इब्तदा, वाह वाह वाह। मोहम्मद की नालैन है। एक जुमला पढ़ा, एक मिसरा पढ़ के इसी पे मैंने सलाम करना है, और बड़ा प्यारा मिसरा आ गया। जुमला सुनेगा, तवज्जो करिएगा। जहां इसका तलवा लगाया गया है। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। किसका तलवा? सरकार की नालैन। सरकार मुस्तफा की नलैन का तलवा जमीन पे लगा, और तलवा लगता है मट्टी पे। आप तैर भी करिएगा, दांत भी दीजिएगा। मिसरा बड़ा प्यारा है। जहां इसका तलवा, किसका? सरकार के पाँव का नहीं, नालैन का। सिर्फ वाह सरकार वाह। की नलैन से मस हो, पाँव से मस होने वाली नलैन का तलवा, जहां इसका तलवा लगाया गया। बड़ी हसीन है। मौला की कसम जाकरी गल नहीं कि मैं उठ जावा, मौला की कसम मुझे मलाइक भी आके वाह वाह करना, जुमले की कीमत तब भी नहीं है, ना भी दाद दो, मैं नाराज ही कोई नहीं हूँ। बंदा पहुंचे गए वो जिसके दिल में मुस्तफा है। जहां इसका तलवा, किसका? सरकार की नलैन का। कहाँ लगता है तलवा? मट्टी पे। जहां इसका तलवा लगाया गया है, वो मट्टी से आदम बनाया गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। बस क्या आखिरी बात कहना है, जहां इसका तलवा लगाया गया है, उसी वो मट्टी से आदम बनाया गया है। अब कहो ना मुझे मोहम्मद का नुसहरी। हाय, जहां इसका तलवा लगाया गया है, वो मट्टी से आदम बनाया गया है। जमी पर जो बंदों की है राज का, मोहम्मद की नालैन है। क्या बात, क्या मुस्तफा की बात। जूती के सदके जो लेता है वो मेरे साथ बोले, जिसके घर का बाबा जी घर दे विच रोटी पकांदी बीवी दे सामने हीरो बनना बड़ा आसान है, लेकिन मर्द की मर्दानगी का पता किचन में नहीं मैदान में पता चलता है। जब बंदा चौक में खड़े होकर सीना तान के लब्बई का या मुस्तफा का नारा लगा के घर आता है। जुमला सुन, जहां इसका तलवा लगाया गया है। जो शायर होता है ना, पहला मिसरा यहाँ लिखा, अगला मिसरा यहाँ, अगला यहाँ, इसका पहली लाइन यहाँ है, अगली पता नहीं कहाँ है। पहली लाइन पे बोलना मेरे साथ, इस पे सलाम करना है मैंने। जहां इसका तलवा लगाया गया है, वो मट्टी से आदम बनाया गया है। जमीन पर जो बंदों की है राजिका, मोहम्मद की नालैन है। रज़ाबाद वालों सर उठाना, मैं कह रहा हूं ये जूती को मरियम भी झुकती रही है। क्यों ना बोला बंदा
जिसके दिल में मोहब्बत है, ये जूती को मरियम भी झुकती रही है। कौन है मरियम? ईसा की माँ है। कोई मर्द पास नहीं आया, फिर भी बेटा दुनिया में नाज़िल हो गया। अल्लाह की बतूल है, बतूल सुगरा है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, सजदा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ झुकती। फतवा नहीं लाना, मैं कह रहा हूँ झुकती। बाबा जी गल मौला दी कसम एडी प्यारी है कि बंदा सांस लेता हो खामोश नहीं रहेगा। मैंने कहा ये जूती को मरियम भी झुकती रही है, ये जूती को मरियम भी झुकती रही है, ये ज़हरा की चौखट पे रुकती रही। वाह 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 वाह, ये ज़हरा की चौखट पे रुकती रही है। सहाबी जिसे कोई छू ना सका, मोहम्मद की नालैन है, मोहम्मद की नालैन है। बस यहीं से सलाम। जितना सुना मैं मशकूर हूँ आपका, आपने तायद भी की, आपने दाद भी दी। जितना पढ़ा तराजू लो, उसे एक तरफ रखो। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ स्पेशली शिया, उसे एक तरफ रखो। दूसरे बंदे को समझ नहीं आने वाली बात इतनी बड़ी करने जा रहा हूँ। अब तक जो मैंने पढ़ा, बस इसी पे सलाम, अब तक जो मैंने पढ़ा मेरे साथ बोलिएगा। मैंने कहा मुसलमान तू जिसके सदके हुआ, मोहम्मद की नालैन है। बलाए अरश पर जिसे खुद खुदा, मोहम्मद की नालैन है। ये पर्वत को कुन कह के बुनती रही है, ये बातें खुदा की भी सुनती रही है। हुई जिसकी मेराज से इब्तदा, मोहम्मद की नालैन है। जहाँ इसका तलवा लगाया गया है, वो मिट्टी से आदम बनाया गया है। जमीन पर जो बंदों की है राजी का, एक इशारा है, इशारे में दात है। और आखिरी गल इसी पे सलाम है। जमीन पर जो बंदों की है राजी का, मोहम्मद की नालैन है। ये जूती को मरियम भी झुकती रही है, ये बातें खुदा की भी सुनती रही है। ये जूती को मरियम भी झुकती रही है, ये ज़हरा की चौखट पे रुकती रही है। सहाबी जिसे कोई छू ना सका, मोहम्मद की नालैन है। अगर कोई अली से लड़ाइयाँ लड़ेगी, क्या हम अगर कोई अली से लड़ाइयाँ लड़ेगी, अगर इशारा भी नहीं समझा तो कौन समझेगा? अगर कोई, जिसे जमल याद है, अगर कोई अली से लड़ाइयाँ, मैं तेरे अकीदे की वकालत चौक में खड़ा होकर कर रहा हूँ, मेरा सर उतार दे बंदा, मेरी बात रद्द करे, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, अगर कोई अली से लड़ाइयाँ लड़ेगी, ये जूती भी उस पे लानत करेगा। वाह वाह वाह, क्या बात, जूती भी क्या उसपे लानत करेगी। पहन सकता है जिसे बस मुर्तजा, मोहम्मद की वो नालैन है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बस इसी मोहम्मद की बेटियों को बड़ा मारा है मुसलमान। जितना पढ़ा तेरे लिए पढ़ा, अपने लिए पढ़ा। उस मखदूमा का दुख पढ़ना है जिसके लिए शाम से एक बीबी आई है, जो मस्तूरात में आके बैठी है और इंतज़ार कर रही है कब पढ़ने वाला हमारे घर के दुख पड़ेगा। हर बंदे की आंख में आंसू नहीं आता है, रोता वो है जिसके दिल में रोज़ा मेरे हुसैन का होता है। दुआ किया करो, क्योंकि चहलम की मजलिस है, तरहीम की मजलिस है, तो एक जुमला पढ़ देते हैं मुआशरे के दर्द का। दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हें 7 भी बेटे देना तो एक बेटी ज़रूर दे। दुआ मांगा करो, अल्लाह तेरे 7 बेटे भी देना तुझे, तो तुझे एक बेटी ज़रूर दिया करे, क्योंकि बेटे जगीरों के वारिस होते हैं। कर हाय ना, बेटे जगीरों के वारिस होते हैं, बेटियां जनाजों के वारिस होती हैं। और बाप मर जाए ना, बेटे 7 भी हो, एक बेटा भी सारी रात बाप की मैयत में बैठ के रोता नहीं है, और बेटी एक भी हो सारी रात बाप का सराहना नहीं छोड़ती। हमसाई औरतें कहती उठ पानी पी ले, और रो के कहती कैसे पानी पीऊं, मेरा पेका घर उजड़ गया है, और मेरी पेकी आस खत्म हो गई। दुआ किया कर अल्लाह की बेटी दे। बस एक जुमला, जितना पढ़ा इतना और, इसी पे सलाम। एक दुख बहन की मुसीबत का, एक दुख बेटी की मुसीबत का, इसी पे सलाम। किसी बहन का भाई मर जाए ना, तो देखा होगा किसी भाई का, बहन का भाई मर जाए ना, बहन परदेश में रहती हो, उसे फोन पे तला मिले तेरा भाई मर गया है, आप मुआशरे में रहते हो, मेरी बोल के तायद करके बताएं, वो मरने वाली की जो बहन होती है वो घर के ताले खुद लगाती है।
हमसाई औरतें आ जाती हैं, उसके घर के ताले लगाती हैं, उसके घर का सामान बांध देती हैं। आधी रात का वक्त तो बहन चलने लगे, मोहल्ले के शुरफा कहते हैं और रुक जा, आधी रात का वक्त है, तुझे सवारी नहीं मिलनी, और रो के कहती मुझे सवारी मिले ना मिले और मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरी पेकी आस खत्म हो गई है और मेरा पेका दरवाजा बंद हो गया। बहन शिया की हो, बहन सुन्नी की हो, मैंने अक्सर लोगों को कब्रिस्तान में जनाजे रख के इंतजार करते हुए देखा है। जो किसी के साथ जनाजे पे आया तो वो पूछता है कफन हो गया? जी हो गया। गुस्ल हो गया? हो गया। जनाजा पढ़ा दिया? पढ़ा दिया। दफनाते क्यों नहीं है? कोई कान में कहता है अभी बहन नहीं आई, और जितना मर्जी सख्त दिल बंदा हो कहता है जनाजा रख दो, और जब तक बहन नहीं आती और तब तक मुझे दफनाना नहीं है। मुझे मौला की कसम, बहन शिया की हो, बहन सुन्नी की हो, और बहन सीधी कब्रिस्तान में आ जाए और लोग कहते हैं रास्ता दो और मरने वाले की बहन आ गई है। और मुझे बोल के बताओ, हम शिया 1400 बरस के बाद भी अपने जनाजों पे हुसैन को बैठे रो रहे, हमारे रोने की वजह ये है और जिसका भाई मर जाए और लोग उसको रास्ता देते हैं, अल्लाह जाने हुसैन के बाद और 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश पे हुसैन की तीनों बहनें और सर पे कुरान रख के कहती रही, हुसैन दिल हमारा भी था, हम तेरा चहलम करवाती, हमारी की नहीं सुनी गई, हमारी सफ भाइयों की मारी गई और नाने की उम्मत रसियां। कर मातम हुसैन का जो मातम, ये मिसरा आखिरी है मेरा। जो सुन्नी बैठा है ना, उसके मसलक में मातम जायज नहीं है। उसकी किताबों से दिखा सकता हूँ हुसैन को रोना भी सवाब है। यार जेड़े शिया बैठे हो ते हाथ सीने ते मारे ना अगले मिसरे ते, गल इड्डी बड़ी है, तू कबर दी दीवाना तक रोना है। मोहल्ले में रहते हो, किसी बेटी का बाप मर जाए ना, उस बेटी के घर में सारा मोहल्ला आ जाता है। बाप का जो जिसकी सारी जिंदगी जिसके साथ दुश्मनी रहती है ना, वो भी घर आ जाता है। कल आखिरी है, जिसके दिल में हुसैन है ना, पता नहीं वो कितना मातम करेगा, कितनी हाय करेगा। जो शिया है ना, ये मेरे बंदे हाथ है, ये ना हो मैं जुमला पढ़ूं तेरा हाथ सीने पे ना है, तुझ पे हुसैन की नजर पड़ जाए और तड़प जाए हुसैन रो के कहे, और जाकर मेरी मुसीबतें बढ़ता रहा और तेरे मुंह से सिर्फ एक हाय ना निकली और तेरा आंसू मोहम्मद की बेटी लेने आती है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, जिस बेटी का बाप मर जाए, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, बाप के दुश्मन उस बेटी के घर आ जाते हैं, उस बेटी के सर पे हाथ रख देते हैं, हाथ रख के कहते बेटी देख, और दुश्मनी तेरे बाप के साथ थी, वो दुनिया से चला गया, लेकिन बेटियां सबकी सांझी होती हैं और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मेरे घर में आ जाना, और मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। और मुझे बोल के बताओ दानश्वर बन के, और जिस बेटी का बाप मारा जाए, मोहल्लेदार उससे प्यार करते हैं या उसके तमाचे मारते हैं? अल्लाह जाने। हुसैन के बाद और सकीना रो रो के कहती रही, और मुसलमानों, और ये कैसा इंसाफ है, और बाबा भी मेरा मारा गया और तमाचे भी मैं खा रही हूँ। अल्लाह लानतुल्लाह।